So the concept under discussion is halogenealkane. Topic is halogenealkane. Halogenealkane. अच्छा बेटा general representation of halogenealkane is Rx. Okay. So this R is for alkyl. This R is alkyl, right? And this X is halogen. X is halogen. ये जो X halogen है, it could be fluoro, could be chloro, could be bromo, could be iodo. और ये जो R है, it could be methyl, ठीक है? Methyl is alkyl ना? It could be ethyl, C2H5. It is for bond, okay? Methyl इसमें one bond deficiency है. It can be methyl, can be ethyl, can be propyl, and so on. And so on. Right? So, for example, if I write chloromethane, so this is halogenealkane if I write it as bromomethane. ठीक है? अच्छा. Sorry? तो उधर BR आ गया ना उससे. ओके सो अब ना हेलोजिनोअल्केन में बेटा जो चीज आपको फोकस रखनी है फॉर एग्जांपल दिस इज क्लोरोमीथेन ओके दिस इज क्लोरोमीथेन तो अब इसको आपको ये CCl बॉन्ड को फोकस करना है राइट तो यू नो कि ये C दिस इज कार्बन एंड दिस इज क्लोरीन तो बॉन्ड पोलैरिटी will be there because chlorine being more electronegative is partial negative and carbon being less electronegative is partial positive. So whenever you see halogenealkane, for example, this is another halogenealkane, ठीक है? जब भी किसी halogenealkane को आपने देखना है in terms of reactivity, तो reactivity में आपने you have to focus this carbon halogen bond. और बस आप अपने ध्यान में रखें कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन इज पार्शियल नेगेटिव कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव ये बात आपको अपने ध्यान में रखनी है द अदर कॉन्सेप्ट यू नीड टू नो मैंने आई एक्सप्लेन दिस अर्लियर बट आई एम रिवाइजिंग इट इज न्यूक्लियोफाइल व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल दिस इज वन मार्क डेफिनेशन ओके व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल इज अ पार्टिकल विद लोन इलेक्ट्रॉन पेयर okay what is nucleophile nucleophile is a particle with lone electron pair as a particle जिसमें lone electron pair हो that is nucleophile so now in this topic halogenealkane में these three nucleophiles will be under discussion तो ध्यान में रखें एक this OH ion this is a nucleophile then this is CN में carbon का lone pair will be used. Just keep in mind, okay? Carbon का lone pair will be used, and then NH2. So these are the three nucleophiles which will be under discussion in this topic. अच्छा फिर next thing बेटा ये भी पता होना चाहिए कि ये जो OH nucleophile है, this can be produced when you dissolve sodium hydroxide in water या potassium hydroxide in water. Right? When you dissolve sodium hydroxide or potassium hydroxide in water, you will get this nucleophile, which will be used in this reaction, in this chapter. जबकि ये जो CN nucleophile है, that can be produced when KCN is dissolved in alcohol. Okay? When KCN is dissolved in alcohol, या NaCN is dissolved in alcohol. KCN or NaCN is dissolved in alcohol, so then this nucleophile is produced, CN negative.
इसी तरह NH2 न्यूक्लियोफाइल कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम? अमोनिया को अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे, ये जस्ट इसको मेमोराइज रखना है, राइट? When you dissolve ammonia and alcohol, you will get NH2 negative nucleophile. KCN NaCN को जब आप dissolve करोगे alcohol में, you get CN negative nucleophile. Nucleophile की भी समझ आ गई। और OH nucleophile will be obtained when NaOH or KOH is dissolved in aqueous medium. तो देखें solvent का फर्क है ना, ये OH के लिए solvent is water और CN और NH2 के लिए solvent is alcohol, ठीक है जी? एनी कंफ्यूजन ऑफ दिस बैकग्राउंड? अच्छा, देखो, नाउ इफ दिस इज द सिचुएशन, दिस इज हैलोजन ऑल्केन, राइट? दिस इज हैलोजन ऑल्केन एंड this Cl is partial negative, this C is partial positive, and we just studied that OH is one of the nucleophile, ठीक है? OH is nucleophile, partial का साइन है। ओके, दिस लोन पेयर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये क्या करेगा बेटा? लोन पेयर अटैक करेगा ऑन दिस कार्बन, ठीक है? ये जो लोन पेयर है दिस न्यूक्लियोफाइल का, इट विल अटैक ऑन दिस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन एटम। तो अब देखो, जब ये अटैक होगा, अटैक का पर्पस है बॉन्ड मेकिंग। दिस ऑक्सीजन विल मेक बॉन्ड विद दिस कार्बन, तो कार्बन कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड्स, दिस कार्बन ऑलरेडी हैज 4 बॉन्ड्स। तो ऑब्वियसली ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन हैलोजन, इट हैज टू ब्रेक, it has to break. As a result, what happens is that OH will be bonded with this carbon and this chlorine will leave that halogen alkane as leaving group. तो अब हम इसको कहेंगे leaving group. Halogen था ना जिसने leave किया, this is leaving group. किसके साथ? क्लोरीन के साथ नहीं हो सकता ना, OH पे नेगेटिव है, क्लोरीन पे भी नेगेटिव है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है। ये बेटा अटैकिंग ग्रुप है, ठीक है? अटैकिंग ग्रुप इज न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग ग्रुप है जो कि असल में न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है? तो ये जो अटैकिंग ग्रुप है हैज टू बी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन द न्यू लिविंग ग्रुप। तो ये जो मैंने आपको बताया है OHCN और NH2, ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है देन द हैलोजन, दैट इज व्हाई ये आके हैलोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो ये इस रिएक्शन को आप बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोलेंगे बेटा? कि एक न्यूक्लियोफाइल हैज सब्स्टिट्यूटेड द अदर न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं, SN, ये नोटेशन चलती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। N इज फॉर न्यूक्लियोफिलिक और S इज फॉर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो फिर देखें कि अगेन आई एम टेकिंग दिस हैलोजन ऑल्केन, दिस Cl is partial negative, this carbon is partial positive. नाउ अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को चेंज करूं, लाइक इफ इट इज CN, ये न्यूक्लियोफाइल ले लूं या दूसरा न्यूक्लियोफाइल ले लूं मैं NH2, ठीक है? तो अब देखें व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी? अगर ये CN का कार्बन का लोन पे अटैक करे इस कार्बन पे, तो दिस बॉन्ड विल ब्रेक, so what happens? CN will replace halogen, so chlorine will appear as chloro. How to name this product? It has 2 carbon atoms, 1 and 2. This is ethane nitrile. The functional group CN is named as nitrile, so this is ethane nitrile. Now on the other hand, अगर मैं ये NH2 को as a nucleophile लूं, ये जो अटैक कर रहे हैं ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं क्योंकि इनमें लोन पेयर है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फिर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। तो व्हाट प्रोडक्ट यू गेट हियर? दिस CH3 is bonded with NH2 now. NH2 को एमाइन कहते हैं, ठीक है? तो दिस इज एक्चुअली मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन। तो अब ये नीचे जो मैंने 2 रिएक्शन लिखे, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, दे आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि one nucleophile is coming and it is substituting the other nucleophile. That is why we say कि 2
both these reactions are nucleophilic substitution. पहला रिएक्शन भी nucleophilic substitution था. ओके, देखिए कितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, आपने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को फोकस में रखना है. ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है. N इज फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड S इज फॉर सब्स्टिट्यूशन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शॉर्ट वे में SN कहते हैं. तो अब जब भी हैलोजिनो अल्केन का रिएक्शन होगा, आपने फोकस किसको रखना है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को. और तीन तरह के न्यूक्लियोफाइल हैं जो सब्स्टिट्यूशन में रोल प्ले करेंगे, OH, CN और NH2. ये आके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction. अब let's say I take this halogen alkane. This is CH3, then this is CH2, and then this is bromoethane basically. ठीक है? I'm taking bromoethane. अब फिर इसके इन रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे. अब वंस अगेन देखें, दिस कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस ब्रोमीन इज पार्शियल नेगेटिव. ठीक है. अच्छा, द वेरी फर्स्ट रिएक्शन जो मैं अंडर डिस्कशन ले रहा हूं, इसमें रिएजेंट इज वाटर. अगर वाटर से रिएक्शन करें और हीट कंडीशंस में ऑब्वियसली रिएक्शन विल हैपन, तो बेटा ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस. ठीक है. रिएक्शन विद वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस. जी जी, जरूरत है. रिएजेंट कंडीशन सब आपको याद करने होंगे. दिस रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस. एवरी रिएक्शन व्हिच इज हैपनिंग विद वाटर इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. अब इसमें जरा ये बात ध्यान में रखें, यू नो कि वाटर में यू हैव H and OH. OH is present ना. तो वाटर में दो डिसोसिएशन कम होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, बट OH ions will be present. लेकिन ये OH ions कम होंगे क्योंकि वाटर में डिसोसिएशन इज वेरी लेस. What happens के OH ions from the water will substitute, ठीक है, this halogen. तो what product you will get here? CH3, CH2 and OH. Halogen will be replaced with this OH. Water से hydrogen is left behind और वहां से halogen है. HBr is this byproduct. Byproduct is HBr. Reaction is hydrolysis, but this reaction is very slow reaction, right? Water से reaction तो होगा लेकिन बहुत slow reaction होगा. अब reaction की speed को increase करने के लिए what we do, अब हम reagent use कर रहे हैं NaOH aqueous. Okay, now the reagent is NaOH aqueous. So you know that NaOH aqueous, NaOH will readily dissociate into sodium ion and hydroxide ions. So now the nucleophiles are readily available and more nucleophile available. Water के केस में OH nucleophile very less थे, rate of reaction इस वजह से slow था. लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने ऐड किया तो बहुत आपके पास OH होंगे, तो रिएक्शन रेट जो है वो बेटर होगा. अब इसके क्या प्रोडक्ट्स होंगे बेटा? इसमें ये OH हैलोजन को जाके रिप्लेस कर देगा. कॉन्सेप्ट वही है. OH विल सब्स्टिट्यूट दिस हैलोजन. अल्कोहल बन गया and sodium will combine with this bromine to make NaBr. हाँ, यानी जितने न्यूक्लियोफाइल रेडिली अवेलेबल होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बेटर होगा. आगे रेट पे थोड़ी और भी डिस्कशन होगी, हम मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे, वहां से रेट को लिंक करेंगे. ये तो मैं इन जनरल बेटा बता रहा हूँ वाटर के कंपैरिजन में. ठीक है. तो ये वाला जो रिएक्शन है इसकी रेट बेटर है. इट विल हैपन विद द बेटर रेट. अच्छा, फिर बेटा नेक्स्ट सिचुएशन इज के इफ वी रिएक्ट इट विद सोडियम साइनाइड NaCN. अब यहाँ जो रिएजेंट होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए, वो एथेनॉल होना चाहिए. ठीक है. अभी ऊपर डिस्कशन किया कि CN न्यूक्लियोफाइल है, वो एथेनॉल सॉल्वेंट में प्रोड्यूस होगा. कंडीशन इज हीट. तो ये NaCN, यू कैन टेक KCN एज वेल. रिएजेंट इज ईदर NaCN और KCN, और सॉल्वेंट इस केस में एथेनॉल है या अल्कोहल है. सॉल्वेंट आई हैव रिटन एथेनॉल, अल्कोहल भी लिख सकते हैं, राइट. अब नाउ इन दिस केस जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा होगा? NaCN डिसोसिएट होगा ना. NaCN डिसोसिएट होगा into sodium ion and cyanide ion.
तो ये CN नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल इसने क्या करना है, यहाँ पे अटैक करना है। तो व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट, CH3 CH2 CN। ठीक है, ये CN आके इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। तो ब्रोमाइड आयन इज ओके, ब्रोमाइड आयन और सोडियम भी अवेलेबल है ना, तो सोडियम ब्रोमाइड इज द बाय प्रोडक्ट। दिस इज sodium bromide, which is byproduct. How to name this compound, beta? How to name this one? 1, 2, 3. This is this is propane nitride. This is propane nitride. This compound is known as propane nitride. अच्छा, ये जो रिएक्शन है इसकी एक सिग्निफिकेंस है। आप बताएं कि जो रिएक्टेंट था उसमें हाउ मेनी कार्बन एटम्स वर प्रेजेंट? रिएक्टेंट में 2 कार्बन एटम थे। प्रोडक्ट में कितने कार्बन एटम्स हैं? 3। इस रिएक्शन की ये सिग्निफिकेंस है कि ये कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, राइट? सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिएक्शन कंटिन्यूसली ये कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आप हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करवाओ और हाइड्रोजन ऑर्गेनाइज आएगी एक्चुअली। अगर इसको सनलाइट और क्लोरीन में ट्रीट करेंगे तो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। फिर केसीएन से फर्दर रिएक्शन करें, एक और केसीएन आ जाएगा। जब सारे रिएक्शन हो जाएंगे फिर मैं इसको बताऊंगा कि किस तरह डील करना। सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ दिस रिएक्शन? This reaction is used to increase carbon chain, used to increase carbon chain, right? अच्छा, देन बेटा नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो अमोनिया के साथ है। रिएजेंट इज अमोनिया। अमोनिया शुड आल्सो बी डिसॉल्व्ड इन एथेनॉल, ठीक है? एंड इसकी कंडीशन है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर इज द कंडीशन। वार्म भी कर सकते हैं, हाई प्रेशर इसलिए कि अमोनिया डिसॉल्व रहे एथेनॉल। तो बेटा हमने अभी डिस्कस किया था कि अमोनिया अगर आप डिसॉल्व करोगे ना तो इससे ये न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस होगा, NH2 नेगेटिव और नाइट्रोजन पे लोन पेयर। और दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक द कार्बन, तो व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट? CH3 CH2 NH2 will be attached, यानी कि ethyl amine. Ethyl amine is the product. And what is the byproduct? HBr is the byproduct. क्योंकि अमोनिया से एक H और ये हाइड्रोजन they will combine together to make HBr, which is the byproduct. Okay. अब ये जो रिएक्शंस हैं इसमें पहला वाला रिएक्शन हाइड्रोलिसिस था, ठीक है? जो दूसरा वाला रिएक्शन है उसको भी आप हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं, ठीक है? सेकेंड रिएक्शन इज आल्सो हाइड्रोलिसिस। लेकिन ये सेकेंड रिएक्शन को आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन वाज ईदर हाइड्रोलिसिस या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दोनों नाम याद होने चाहिए। थर्ड रिएक्शन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। फोर्थ रिएक्शन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है? तो नाउ द फिफ्थ रिएक्शन, ये NaOH अगर एथेनोलिक हो, NaOH क्या हो? एथेनोलिक हो, यानी एथेनॉल में डिसॉल्व हो और हीट हो, तो सेकेंड रिएक्शन और ये लास्ट रिएक्शन में देखें क्या डिफरेंस है? और सेकेंड रिएक्शन में वाटर था सॉल्वेंट। एक मिनट पहले मैं इसको अलग से करवाऊं फिर यहाँ आगे इसको कमेंट करते हैं। देखो, सपोज दिस इज हेलोजिनोअल्केन CH3 CH2 CH2 CH and this is halogen CH2, ठीक है? अब अगर मैं इसको ट्रीट करूं NaOH अल्कोहल में या एथेनॉल में और हीट करूं तो बेटा ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा? इस कार्बन को जिस पे हैलोजन अटैच है इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, ठीक है? जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है उसे क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन।
और अल्फा कार्बन के साथ नेबरिंग जो इसका कार्बन होगा उसे क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। अल्फा अल्फा का जो नेबर होगा दैट इज बीटा कार्बन। ठीक है, क्या बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच्ड है? कितने हाइड्रोजन है बीटा कार्बन पे? दो हाइड्रोजन है, तो आई एम टेकिंग दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को आई एम टेकिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अल्फा कार्बन से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, और अल्फा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। अल्फा और बीटा के दरमियान अल्फा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। और दिस विल हैपन ओनली व्हेन, जब ये NaOH अल्कोहलिक हो या KOH अल्कोहलिक हो, अल्कोहल में डिसॉल्व हो। एक मिनट क्वेश्चन लेता हूँ, कंप्लीट होने दे। ये जो सोडियम है ना, देखें सामने, सोडियम ब्रोमीन से कंबाइन होगा तो NaBr बनेगा। ठीक है, और जो OH है वो इस H को पिक करके वाटर बनाएगा, ये बाय प्रोडक्ट्स होंगे इसके। यस, नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन। नहीं, रिएजेंट वही है, NaOH है, सिर्फ सॉल्वेंट चेंज किया, सॉल्वेंट H जब फॉर्म नहीं होता, ये Na की ज्यादा एफिनिटी है Br की तरफ। जी, इसका मैकेनिज्म भी सिलेबस में नहीं है। एक मिनट लो, अगर के ये रिएक्शन इस तरह है, NaOH एक्वस कर दिया मैंने, अब क्या होगा? और हीट, अब ये व्हाट विल हैपन, व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट? CH2, CH2, basically अब halogen will be replaced with OH ना, तो this is nucleophilic substitution reaction plus NaBr। तो दोनों रिएक्शन में फर्क देख लो, एक में एलिमिनेशन हो रही है और ये वाला जो है रिएक्शन जो नीचे आ रहा है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फर्क जो है दोनों में सॉल्वेंट का है। इस रिएक्शन में सॉल्वेंट इज वाटर। ठीक है, जो दूसरा रिएक्शन था उसमें सॉल्वेंट क्या था? एथेनॉल था। रिएजेंट देखो दोनों में सेम है, रिएक्टेंट दोनों में सेम है, लेकिन सॉल्वेंट के फर्क होने से ये रिएक्शन का फर्क होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। सॉल्वेंट जो है इस केस में है वो एथेनॉल है या अल्कोहल। ठीक है, अब बेटा इसको देख के एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी आप बता सकते हो। इट्स 2 मार्क्स डेफिनेशन। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन, हाउ वुड यू डिफाइन एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर 2 मार्क्स? एलिमिनेशन रिएक्शन आप बोलोगे कि when 2 atoms or groups are removed from 2 consecutive carbon atoms। ये अल्फा और बीटा असल में 2 consecutive carbon atoms हैं, और दोनों से एक एटम या ग्रुप रिमूव हुआ है, और फिर 2 consecutive कार्बन जिसमें से ये एटम्स रिमूव हो, वहां डबल बॉन्ड भी बन जाए, ये इसको एलिमिनेशन कहते हैं। क्या आप देखें ऊपर जो हुआ उसको ये सेटिस्फाई करिए डेफिनेशन, when 2 atoms या ग्रुप्स are removed from 2 consecutive carbon atoms, consecutive carbon atoms, and alkene is formed, और एल्कीन भी बने, तो ऐसा रिएक्शन क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। राइट, एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? तो बेटा आप मुझे ये बताएं जरा कि व्हाट विल हैपन हियर। ये जो मैंने लिखा NaOH एथेनोलिक हीट, इस केस में क्या होगा? दिस इज द अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन जिसमें हेलोजन अटैच है, और फिर ये बीटा कार्बन है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, बीटा से आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे, अल्फा से आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे, तो अल्फा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, यानी इथीन बनेगा। बाय प्रोडक्ट में NaBr बनेगा और वाटर बनेगा। राइट, एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन?
अच्छा, सो एलिमिनेशन रिएक्शन में आपने अब फोकस करना है अल्फा और बीटा कार्बन एटम्स पे, ठीक है जी, सॉरी, हाँ, जब अल्कोहल होगा NaOH या KOH अल्कोहल में डिसॉल्व हो, लेकिन जब NaOH और KOH वाटर में डिसॉल्व हो तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ बेटा मुझे कि इफ के हेलोअल्केन इज लाइक दिस इज हेलोजिनोअल्केन, तो इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है? ये हेलोअल्केन है, ठीक है। और बेटा इसमें अब द रिएजेंट इज NaOH एथेनोलिक, एथेनोलिक, ठीक है, और हीट, तो ऑब्वियसली NaOH एथेनोलिक है, तो दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन अब होना है यहाँ पे। कौन सा रिएक्शन होना है? एलिमिनेशन रिएक्शन होना है। ये नेम ऑफ रिएक्शन भी पता होना चाहिए, रिएजेंट याद होने चाहिए। दिस इज अल्फा कार्बन, ठीक है। अब बीटा कार्बन इसमें एक है या दो है? दो बीटा कार्बन है, ये भी बीटा हो सकता है, ये भी बीटा हो सकता है, ऐसा है बेटा, बीटा कार्बन 2 है। अब आप देखें कि ये जो बीटा कार्बन है ये वाला, इससे अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करूं और अल्फा से अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव करूं तो डबल बॉन्ड इधर आएगा ना, फर्स्ट पोजीशन पे, डबल बॉन्ड ऐसे आएगा ना, ठीक है। सॉरी, ये प्लस साइन नहीं, ये वन ऑफ द प्रोडक्ट है, यानी ब्यूट वन इन है एक प्रोडक्ट, दिस इज ब्यूट वन इन, ठीक है। और फिर दूसरी सिचुएशन क्या है बेटा कि हम ये करें कि जो बीटा दूसरा बीटा कार्बन है उसका हम हाइड्रोजन रिमूव करें, दूसरा बीटा कार्बन उसका हाइड्रोजन और अल्फा से हाइड्रोजन जाएगा, फिर डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? सेकंड कार्बन पे आएगा ना, फिर इट विल बी लाइक दिस। कंफ्यूजन बेटा? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। तो अब बेटा जो प्रोडक्ट्स आपके पास आए हैं और फिर जाहिर है इसमें NaBr, NaCl और वाटर बाय प्रोडक्ट होंगे, मैं बैलेंस नहीं कर रहा, सिर्फ नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स पे फोकस है। अब बताओ कि कितने आपके पास आइसोमेरिक प्रोडक्ट बने? आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आर, जी, और आइसोमेरिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कितने? आइसोमेरिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वो 3 हैं, 3 आइसोमेरिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। 3 कैसे हैं? ये जो ब्यूट 2 इन है ना, ये दूसरा वाला, इसमें सिस ट्रांस प्रेजेंट है। जो पहला वाला है उसमें सिस ट्रांस नहीं प्रेजेंट। आपको याद है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की क्या कंडीशन थी कि अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के 2 हाइड्रोजन एक जैसे हों तो फिर उसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होती, तो इसमें तो नहीं है, नो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। लेकिन इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन की अटैचमेंट्स डिफरेंट है। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है इसमें। फिर बेटा ये पास पेपर में इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं कि जो 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स बनाएं और फिर फुल नेम लिखें। क्या लिखें? फुल नेम लिखें और फिर प्रोडक्ट्स के जो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स बनाएं। तो बेटा आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स के अब स्ट्रक्चर देखो, ब्यूट वन इन का तो कुछ नहीं उसमें, तो क्योंकि सिस ट्रांस नहीं है, ब्यूट वन इन तो इस तरह होगा, ठीक है, ये ब्यूट वन इन है। लेकिन बाकी जो जिसमें सिस ट्रांस प्रेजेंट है उसके आइसोमेरिक फॉर्म्स बनाए, कैसे बनाएंगे बेटा ज्योमेट्रिक आइसोमर्स? C डबल बॉन्ड C बना दो, 2 हाइड्रोजन है, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर यूं शो करते हैं, और CH3 है दोनों पे, यूं शो कर दें। ये सिस है या ट्रांस है? ये सिस है, इसका नाम क्या है? सिस ब्यूट 2 इन, सिस ब्यूट 2 इन, क्योंकि नंबरिंग करें तो 1 2 3 4। तो इशू है कि सिस क्यों है और इसका ट्रांस कैसे होगा? किसी एक साइड
वो लेट्स इस साइड को इस तरह कर दें, दिस इज ट्रांस। देखो आइडेंटिकल एटम जब ग्रुप डायगनली है तो ये ट्रांस होगा। अब इसका फुल नेम क्या है? ट्रांस ब्यूट टू इन। तो बेटा जिस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन हो या जिसमें सिस ट्रांस प्रेजेंट हो उसको आपने 2 काउंट करना है। उसको क्या काउंट करना है? 2 काउंट करना है। ऐसे मैंने तो मैं बात कर रही थी, देखो ये 2 काउंट करेंगे और ये 1 काउंट करेंगे, तो टोटल फिर कितने प्रोडक्ट्स हुए आपके पास? 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, राइट? अच्छा, सो ये थी एक सिचुएशन। एक सिचुएशन ये है, बताएं कि इसमें अगर इफ आई टेक लाइक दिस CH3 CH3 and CH3 and here I am placing Cl, ठीक है, और NaOH एथेनॉल में एंड हीट करें। यस, अब बेटा क्या बनेगा? एक सॉरी बेटा, लेट मी चेंज द रिएक्टेंट। CH2 and this is Cl, okay, NaOH एथेनॉल में और हीट करें। यस, वेयर इज अल्फा कार्बन? ये दिस इज अल्फा कार्बन। जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच हो उसे अल्फा लेना, ठीक है। विच कार्बन इज बीटा कार्बन? नेबरहुड, ये बीटा कार्बन है। तो क्या बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है? देखो मैंने रूल ये बताया है कि अल्फा कार्बन से जाएगा हैलोजन, बीटा कार्बन से जाएगा हाइड्रोजन, लेकिन यहां बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। नो H एटम ऑन बीटा कार्बन। तो जब बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। नो एलिमिनेशन रिएक्शन, बात याद रहेगी बेटा। बीटा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन नहीं है, नो H एटम बीटा कार्बन, सो नो एलिमिनेशन, ये रूल है, ठीक है। एलिमिनेशन। कंफ्यूजन बेटा? एनी कंफ्यूजन? अहमद यार समझ आई? अच्छा देखें, अब इसी रिएक्शन को अगर हम ले लें NaOH एक्वस में और हीट करें, फिर अब क्या होगा? NaOH एक्वस और हीट करें, कौन सा रिएक्शन होगा? ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, इधर से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ने जाना था। ऊपर देखें एलिमिनेशन क्यों हो रही थी? देखो अल्फा कार्बन से हैलोजन ने निकलना था और बीटा से H ने निकलना था, तो तब अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड आएगा। जब अल्फा से हैलोजन जाएगा, बीटा से H जाएगा, ठीक है। तो इस केस में दोनों बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था, तो दोनों जगह पे डबल बॉन्ड हमने डेवलप की। ये Na इधर आ गया ना, NaCl बन गया, ओके। लेकिन अगर बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है फिर तो रिएक्शन नहीं होगा। इसका क्या बनेगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। NaOH अगर एक्वस है, व्हाट विल हैपन, फिर OH विल रिप्लेस हैलोजन, ठीक है, और फिर इससे बनेगा NaCl। एलिमिनेशन तो नहीं हुई लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल हैपन, राइट? कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? अच्छा, अब मुझे बताओ कि what about this situation? If you have CH3, CH3, CH3 and Br और ये NaOH एथेनॉल हो, तो प्रोडक्ट होगा या रिएक्शन प्रोडक्ट बनेंगे या नहीं, और आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे या नहीं? होगा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है। तो बीटा कार्बन बेटा ये भी हो सकता है,
बीटा कार्बन ये ऊपर वाला भी हो सकता है, बीटा कार्बन ये नीचे वाला भी हो सकता है। तो क्या आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे या नहीं? प्रोडक्ट एक ही होगा या एक से ज्यादा होगा? देखो, अगर कि मैं एक होगा। अच्छा देखो, अगर अगर मैं इस अल्फा और बीटा को कंसिडर करूं, ठीक है, तो फिर डबल बॉन्ड विल बी लाइक दिस ना, दिस इज CH3 CH3, अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड आएगा ना। अच्छा, अगर मैं इस अल्फा बीटा को कंसिडर करूं, इस अल्फा बीटा को कंसिडर करूं, फिर डबल बॉन्ड किधर आएगा? यहां आएगा। और यू विल हैव लाइक दिस। और लास्ट में अगर ये मैं नीचे वाला कंसिडर करूं, ये नीचे वाला मैं कंसिडर करूं, तो फिर क्या होगा? डबल बॉन्ड इस इन दो कार्बन पे आएगा। क्या ये तीनों एल्कीन्स डिफरेंट हैं या एक जैसी हैं? नेम से आपको पता चलेगा। अब आप इन तीनों एल्कीन्स को नेम करो, तो देखो 1 2 3, तो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन बना कि नहीं? फिर इसको नंबरिंग वहां से शुरू करने जहाँ डबल बॉन्ड करेगा 1 2 3, तो ये क्या है? 2 मिथाइल प्रोपीन है, राइट। इसमें आप दूसरे वाले क्वेश्चन कंसीडर नहीं करेंगे तो चेन का पार्ट नहीं है। हाँ यस, चेन का पार्ट, वहां स्ट्रेट चेन थी, यहाँ पे ये ब्रांच आ रही है। और यहाँ 1 2 एंड 3, देखो ये वाला मिथाइल स्ट्रेट चेन का हिस्सा नहीं है ना, तो ब्रांच को फिर ऐसे नेम करते हैं 2 मिथाइल प्रोपीन। तीनों का नेम सेम है ना, तो ये आइसोमर्स नहीं है। फिर तो इसमें हम बोलेंगे नो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। फिर चेक करना होगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, नो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। बात समझ में आई? अच्छा, और जो इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसको मैं टच करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये थोड़ा बॉन्डिंग से भी लिंक्ड है कि अगर कि ये है CCl, तो यू नो दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव। अगर ये Br के साथ है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। और ये Ci के साथ है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। अच्छा, व्हाट विल हैपन कि अगर मैं इसको OH एक्वस से रिएक्शन हो, OH एथेनॉल नहीं है बेटा, एक्वस है, क्या होगा बेटा? कौन सा रिएक्शन होगा OH एक्वस के केस में? SN, यस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, दो SN रिएक्शन होगा, SN होगा और SN होगा। SN में होगा क्या कि ये OH इधर अटैक करके क्या करेगा? CCl बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये OH करेगा अटैक पार्शियल पॉजिटिव पे और CBr बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये OH इधर अटैक करेगा और ये Ci बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इससे मेथनॉल बनेगा। ऐसा है बेटा, इधर से भी मेथनॉल बनेगा, सॉरी, इधर से भी मेथनॉल बनेगा और इधर से भी मेथनॉल बनेगा। तीनों केसेस में मेथनॉल बने, लेकिन साथ साथ क्या बनेगा? उधर क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन। अगर मैं सोल्यूशन में सिल्वर आयंस भी ऐड कर दूं, सोल्यूशन में मैं सिल्वर आयंस भी ऐड कर दूं, यानी सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दूं, तो इधर AgCl बनेगा ना। AgCl आपको पता है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है, यू नो AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ओ लेवल में पढ़ा था। इधर क्या बनेगा? AgBr जिसके हैं क्रीम प्रेसिपिटेट। इधर क्या बनेगा? AgI जिसके हैं येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है। अच्छा, अब ये जो येलो प्रेसिपिटेट है ना, ये इमीडिएटली बनेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट देर से बनेंगे, लेकिन येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्स इमीडिएटली। क्यों फॉर्म्स इमीडिएटली? येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्स इमीडिएटली, व्हाई? येलो प्रेसिपिटेट बहुत जल्दी बनेगी, क्यों? ये बताओ कि इन तीनों बॉन्ड्स में से कौन सा बॉन्ड रेडिली ब्रेक होगा? देखो, बॉन्ड वो जल्दी ब्रेक होता है जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो, और उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होगी जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो। बॉन्डिंग में हम पढ़ चुके हैं ये बात। देखो, क्लोरीन का रेडियस छोटा है,
इधर देखो, क्लोरीन का रेडियस स्मॉलर है, ब्रोमीन का रेडियस बिगर है, और आयोडीन का रेडियस और भी बिगर है। तो रेडियस के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से बॉन्ड एनर्जी विल डिक्रीज। तो सी आई बॉन्ड की लेस बॉन्ड एनर्जी है। तो जब बॉन्ड एनर्जी कम है तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, येलो प्रेसिपिटेट भी जल्दी बनेगी। इसका बेटा आंसर जो है वो बॉन्डिंग में भी डिस्कस हुआ है। क्या हो रहा है? रेडियस इंक्रीज हो रहा है। किधर? डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। व्हाट इज हैपनिंग? रेडियस इंक्रीज हो रहा है। बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग, और बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजिंग। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजिंग। सो सी आई बॉन्ड रेडिली ब्रेक्स। बात समझ में आई? जब सी आई बॉन्ड रेडिली ब्रेक होगा तो फिर ये येलो प्रेसिपिटेट भी रेडिली फॉर्म होंगे।